Tommy Polytechnic College, Pasar. Direct or APJEE. Admissions for 3 years Diploma Engineering in Civil, EEE and CSE. Scholarship benefits from government. Campus interview in selected departments by South Indian Management. Why we opposing this the farmers bill in the parliament? Because this bill is against the interest of the farmers, and I, being a son of soil and son of the farmer, I also feel that this is injustice to the farmers, because it will affect those mostly rural, indigenous, local tribal farmers in the state. And it is going to badly affect in particularly Punjab and Haryana and other states who are producing more rice and wheat, which internationally dependent on their produces. Without anything wrong, how entire farmers can come out openly in the street and protesting against the law? Why the BJP government undermining the sentiment of the farmers? Why they could not able to realize? Why they don't think even to consult the state government or the stakeholders, those who are going to be affected because of their this draconian law for the farmers of the country? Why they are harassing innocent people? Why they are torturing the people who are protesting against as per the law? In democracy country, there is a fundamental rights who can express their views. There is a right to expressions, right to life, and those all rights have been curtailed by the union government. So on this, the very anti-farmers law, Arunachal Pradesh Congress Committee decided to support the farmers of the country, and farmers of state of Arunachal Pradesh particularly to protesting against this bill until it is revoked, repealed, or it is reviewed and made it as a pro-farmer law for greater interest of the nation. The agriculture, horticulture, the producers bring more growth in the economy. This is the lifeline of the society, of the state and of the country. They cannot dismantle the well-established system, which following since from the Independence Day, since the time of independence of the country. So now I'd like to mention here that there will be online campaign and Speak Up for Farmers from 26th September 2020 throughout the country. And next program
there will be a Kisan Mojdoor Bachao Divas on 2nd October 2020, on the day of Gandhi Jayanti, the birthday of Father of the Nation, Mahatma Gandhi, the Bapuji. And we are also going to organize a mass signature campaign from 2nd October to 31st October to collect signatures from all farmers, the workers, the small business shopkeepers, youths and students. Party, which is not fair in the interest of the farmer community. What do you have to say on that? As per the provision given in the Constitution, every individual citizen has been given right to protest for their own interest, for their survival, for the interest of the state or nation, for every or any decisions, wrong decisions taken by the authority. Whatever the opposition parties are doing there in the parliament, they are doing their rights because they are the representative of the farmer. They are representative of the society, and they represent the state, represent the constitutions. Constituency is constituency. They have to speak for the state. Therefore, they are made as a member of the parliament and they are representing there. They have to speak on behalf of the people. So they are doing their right. क्या आप बता सकते हैं अरुणाचल में हमारा ये जो किसान का जो बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में, उससे कुछ फायदा या नुकसान होने का कुछ आसार नजर आता है? तो किसान जिस प्रकार से बिल में जो जल्दीबाजी में लाया गया है और जिस प्रकार से ये जो देश एक फेडरल स्ट्रक्चर है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, हर मेजर पॉलिसी डिसीजंस, हर मेजर बड़ा बड़ा जो कानून बनाता है, चले जब से ये देश बना, सभी जितना भी गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करते थे और स्टेट गवर्नमेंट को अनुमति लेते थे और सजेशन लेते हैं, व्यू लेते हैं कि कोई भी कानून बनाने से पहले स्टेट का व्यू लेते हैं कि ये कानून लाने से हर स्टेट का क्या अलग अलग का विषय हो सकता है। जो जिस कानून से दूसरा प्रदेश में नुकसान नहीं है, वो कानून एक दूसरा प्रदेश में नुकसान हो सकता है। जो कानून दूसरा एक प्रदेश में अच्छा है, दूसरा प्रदेश में ख़राब हो सकता है, वो तो विचार करना पड़ता है। ये तो बिना विचार, बिना कंसेंसस से कानून बना दिया और लोग अभी विरोध कर रहे हैं कि अभी जो अच्छा से चल रहा था उसको सडनली एक कानून ला करके सारा कॉर्पोरेट हाउस को छोड़ने वाला है। एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट कंपनीज का तो थोड़ा अंतर तो होगा। गवर्नमेंट में पब्लिक सिक्योर्ड है, शांति है, कुछ ना होगा तो नुकसान भी हो जाएगा तो गवर्नमेंट तो बचाएगा। लेकिन अभी उसको उठा करके, उस हक को उठा करके प्राइवेट को दे देगा। प्राइवेट तो कल कुछ समय के लिए अच्छा कर सकता है और नुकसान भी हो सकता है, इसमें गारंटी नहीं है। हमारा अपोजिशन पार्टी लोग भी कहा है कि ठीक है, आप इंक्रीज करो और एमएसपी को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट करके तो ये करेगा तो बोला है, एजीटी रहेगा बोला। लेकिन हम अपोजिशन पार्टी क्या बोल रहा है उसको तब तो आप कानून में डालो, कानून में
सब सेक्शन में कम से कम डाल के रखो, ठीक है। आप इंक्रीज करो, जो फार्मर जो डिमांड जो मांग को पूरा रखो, लेकिन आपका बिल में तो कम से कम डाल दो ना। एमेंड करके अभी भी डाल सकते हैं ना, उसमें डालने के बाद बाकी बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। सर दूसरा बीजेपी कल बोल रहा था कि सर जो कांग्रेस तो फार्मर्स उनका ये जो बिल है उससे उनका इनकम जो डबल हो जाए। और दूसरा बात जो बोल APMC का अंदर में जो कुछ चेंजेस कर रहा है ताकि जो टैक्सेस है फार्मर का टैक्स फ्री हो जाए, और जो बीच में जो मिडिल मैन होते हैं उन लोगों का कमीशन कभी खत्म कर देगा, इससे ये बिल लाया है। तो सिर्फ कांग्रेस जो अपोजिशन है वो ओनली मिस गाइड कर रहा है पब्लिक को प्रोग्रेस के लिए। लेकिन इतना सारा फार्मर्स को कैसे मिसगाइड करेगा? फार्मर्स का भी इतना सारा ऑर्गेनाइजेशंस है, वो किस प्रकार से मिसगाइड करेगा? क्योंकि जो पहले जो रेगुलेट होता था वहाँ वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से होता है, गवर्नमेंट का निगरानी में, गवर्नमेंट का सुरक्षित में, और गवर्नमेंट का बजट से उसको रेगुलेट होता है। अभी जो होगा अभी प्राइवेट से होगा। प्राइवेट कहने का मतलब है इसमें जो कम जो छोटा मोटा दुकानदार है, व्यापार है, छोटा मोटा बिजनेस करने वाला हो तो अनएम्प्लॉयड हो ही जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि वो इसलिए पैदा का बात कर रहे हैं क्योंकि वो बड़ा कंपनी जो बड़ा कंपनी आके इन्वेस्ट करेगा वो तो मोनोपोली तो होगा, चौथा तो ख़त्म होगा। चौथा लोग तो जीने के लिए रास्ता होगा नहीं है ना, कहाँ जिएगा? जब बड़ा कंपनी आने के बाद में चौथा मोटा तो कहाँ लाइफ होगा, और वो लोग कहाँ से जिएगा? वेल देखो फार्मर्स को सपोर्ट करेगा ये फाइट में, प्रोटेस्ट में अंतिम नाम से ये रिपील या तो एटलीस्ट रिव्यू तक आ जाना चाहिए। नहीं, हम लोग कोई भी कानून का ऐसे खिलाफ बोल के नहीं है। हम लोग बोला कि फार्मर्स जो डिमांड है उसको कानून में इनकॉर्पोरेट करो, वही बोल रहा है। कानून में मजबूत करो। आप जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को गवर्नमेंट तो अनाउंस कर ही दिया देगा बोल के ना, और बढ़ा के देगा बोला, उसी को आप लोग आप कानून में लिखो ना। जो बिल में अमेंडमेंट में डालिए, सेक्शन में डालिए ना, तो हम क्यों अपोज करेगा? और जो फार्मर्स है, जो छोटा फार्मर्स है, जब बन दिया उसको प्रोटेक्शन, उनका सिक्योरिटी उसको डालिए। दे शुड बी प्रोटेक्टेड। कल वो लोग नुकसान नहीं होना है, उनका ज़मीन लॉस नहीं होना है। कल वो जो बड़ा कंपनी आके सारा वो ज़मीन को खरीद लेगा तो क्या होगा? उन लोग का लाइफ क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, आगे का जीने का तरीका क्या होगा? दे आर इंटरली डिपेंडेंट ऑन देयर ओन लैंड। छोटा ज़मीन में डिपेंडेंट होता है। कल यहाँ 10, 20, 100 जो पैसा वाला आकर के पूरा ज़मीन खरीद करके बिजनेस करने लगेगा तो बाकी छोटा मोटा परामर्श लोग कहाँ चला जाएगा?